السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ کراچی کے مصروف میں جنار روڈ پر واقع گل پلازا میں پیش آنے والے ہولناک آتشگی کے سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے، جبکہ واقعے کے بعد اب بھی 73 افراد لاپتہ ہے۔ سندھ حکومت کی قائم کردہ ہیلپ لائن ڈیسک کے مطابق پہلے 70 افراد کی گمشدگی رپورٹ ہوئی تھی، تاہم آج مزید 3 افراد کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں متعدد خواتین بھی شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر تقریباً مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔ سانحہ ہفتے کی رات تقریباً 10:15 بجے اس وقت پیش آیا جب گل پلازا کے گراؤنڈ فلور پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل تک پھیل کر پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ شدید آگ کے باعث عمارت کے کئی حصے منہدم ہو گئے، جبکہ باہر کھڑے لوگ بے بسی کے عالم میں اپنے پیاروں کی راہ تکتے رہے۔ فائر فائٹرز نے مسلسل 33 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر مکمل قابو پایا، جس کے بعد ریسکیو ٹیمیں عمارت کے اندر داخل ہوئیں اور محدود پیمانے نے سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس دوران ایک بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء ملے، جنہیں سول ہسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کے مطابق سانحہ گل پلازے کی ابتدائی تحقیقات میں تخریب کاری کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف فائر آفیسر نے بتایا کہ آگ ہفتے کی شب 10:14 پر آرٹیفیشل گملوں اور پھولوں کی دکان میں لگی، جبکہ 10:38 پر ریسکیو 112 کو اطلاع دی گئی۔ فائر بریگیڈ کے پہلے 2 فائٹرز 10:57 پر موقع پر پہنچے، تاہم عمارت کے تنگ داخلی و خارجی راستوں، شدید دھوئیں، پانی کی قلت، ہجوم اور ٹریفک مینجمنٹ نہ ہونے کے باعث آگ بجھانے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ حکام کے مطابق پانی کے ٹینکرز بھی راستے میں تعمیراتی کام کے باعث پھنس گئے، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ چیف فائر آفیسر نے مزید بتایا کہ عمارت کے 3 مختلف حصے گر چکے ہیں اور گل پلازا اب تک مخدوش قرار دیا جا چکا ہے۔ موقع پر تاحال 12 فائر ٹینڈرز، 6 واٹر باؤزرز اور 2 سنارکل موجود ہیں، جبکہ آگ کا تقریباً 90% حصہ بجھایا جا چکا ہے اور باقی ماندہ آگ پر قابو پانے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ حکام کے مطابق زمینی منزل کی تمام دکانوں میں لگی آگ رات گئے مکمل طور پر بجھا دی گئی تھی، تاہم عمارت کے اندر موجود سامان میں اب بھی جزوی آگ موجود ہے۔ سانحے کے بعد شہر بھر میں غم کی فضا قائم ہے اور متاثرہ خاندان اپنے لاپتہ پیاروں کی خیریت کے لیے بے چین ہے۔ ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی کی سربراہی میں مفرور اشتہاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گرول گھاٹی، گڑھی شاہو اور لٹن روڈ پولیس نے سٹاپ اینڈ سرچ آپریشن کے دوران 4 مفرور اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان فراڈ اور بوگس چیکس کے مقدمات میں طویل عرصے سے مطلوب تھے۔ اشتہاروں کو متعلقہ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس ٹیم کو شاباشی بھی دی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کے احکامات پر کینٹ ڈویژن پولیس نے پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے 86 پتنگ بازوں کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہیں، جبکہ پتنگ بازوں، فروشوں اور سازوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ لاہور پولیس کی جانب سے شہر بھر میں جاری سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کے دوران 24 اشتہاری گرفتار، جبکہ ناجائز اسلحے کے 11 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق جنوری میں اب تک 400 سے زائد سرچ آپریشنز، ہزاروں گھروں اور کرایہ داروں کی چیکنگ مکمل کی جا چکی ہیں۔ سی سی پی او لاہور نے شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سخت نگرانی کی ہدایت کی ہے۔ ایس پی سٹی بلال احمد نے تھانہ نولکھا کا اچانک دورہ کر کے ایس آئی پی ایس سیکیورٹی انتظامات، حوالات، ریکارڈ اور فرنٹ ڈیسک کا جائزہ لیا۔ ایس پی سٹی نے زیر حراست ملزمان پر تشدد اور غیر قانونی حراست پر زیرو ٹالرنس کی ہدایت دیتے ہوئے عوامی درخواستوں پر بروقت اور قانونی کارروائی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ پی ایچ اے زون 3 میں درختوں کی مبینہ غیر قانونی کٹائی کے معاملے پر صحافی کالونی پارک کے 2 مالیوں کو ایڈمن آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، صحافی کالونی پارک سے درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا یہ معاملہ پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے صحافی کالونی پارک سے 2 مالیوں کو ایڈمن آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی، جبکہ ذمہ دار ڈائریکٹر اور سپروائزر تاحال عہدوں پر برقرار ہیں۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ گزشتہ دنوں حکومت پنجاب کی ہدایت پر پی ایچ اے کی جانب سے جاری ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے درختوں کے کاٹ چھانٹ اور کٹائی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کے برعکس
डायरेक्टर जोन 3 के ऑफिस से चंद कदमों के फासले पर दरख्तों को काट कर रक्षा में लोड करके फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ था, जिसकी एक फुटेज भी मंजरे आम पर आई थी, जिसमें सहाफी कॉलोनी पार्क में PHA मुलाजमीन दरख्त को काट कर गाड़ी में लोड कर रहे थे। इस मामले पर PHA की आला इंतजामिया की जानब से नोटिस लेते हुए सहाफी कॉलोनी पार्क से 2 मालियों को एडमन ऑफिस रिपोर्ट की हदायत की गई, लेकिन असल जिम्मेदारान डायरेक्टर हार्टिकल्चर गुलजार और सुपरवाइजर ताहाल अपनी सीटों पर बरजमान हैं। मैं आपको बताता जाऊं कि डायरेक्टर हार्टिकल्चर जोन 3 की नाअहली और अदम दिलचस्पी के बायस BRB के करीब आलमी तर्ज पर बनाया गया साइकिल ट्रैक अब खंडर का मंजर पेश कर रहा है, जबकि यहां से लाखों रुपए मालियत के लोहे के जंगले भी चोरी करके फरोख्त किए जा रहे हैं। जी डॉल्फिन स्क्वाड ने हरबंसपुरा में कार्रवाई करते हुए खातून से मोबाइल फोन छीनने वाले मुलजिम नुमान को ताक़ुब के बाद गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया गया और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना हरबंसपुरा के हवाले कर दिया गया। मोबाइल इसने पकड़ लिया, लेकिन रिक्शे वाले ने इसके पीछे ही लगा इसको ये इसने और ये पकड़ा गया, पकड़ा इसके पीछे भगाया रिक्शा पीछे किया और यहाँ आके पंसपुरा पकड़ा गया। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की ज़ेर सदारत रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है, जहां शहरी और पुलिस एहलकारों के मसाइल सुने जा रहे हैं। SP के मुताबिक खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, अवाम को फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस की जारी ड्रोन ऑपरेशन के दौरान लठानी और कोकानी गैंग के मजीद 11 डाकुओं ने थाना भूंग की चौकी गढ़ी खैर मोहम्मद झक में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। DPO इरफान अली समूह के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू अगवा बरतावान, डकैती और लूटमार के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। साबिक डाकुओं ने जराइम की दुनिया छोड़कर बाइज्जत जिंदगी गुजारने के आज़म का इजहार किया है, जबकि कच्चे के नो-गो एरिया में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। रोहिल्ला वाली शहर का मरकजी सीवरेज कई माह से बंद होने के बायस बाजारों और गलियों में गंदा पानी खड़ा हो गया है, जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर राना नूर आजम का कहना है कि सीवरेज बंदिश के बायस मुतअद्दिद दुकानदार कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से फौरी तौर पर मसले का हल करने का मुतालिबा किया है। थाना खानगढ़ पुलिस ने डकैत और चोर गैंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 गैंग्स के 21 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 43,76,000 रुपए मालियत का चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया है। DSP सदर सर्कल मिर्जा मोहम्मद सदीक के मुताबिक कार्रवाइयों के नतीजे में 65 मुकदमात यकसू किए गए। बरामद शुदा सामान मुद्दईयान के हवाले कर दिया गया, जबकि अवामी और समाजी हलकों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। फिरोजवाला में स्पेशल टीवी की खबर नशर होने पर DSP ट्रैफिक पुलिस शेखुपुरा मलिक अहमद अवान ने फौरी नोटिस लेते हुए मुबैना रिश्वत लेते ट्रैफिक कांस्टेबल रिफात अली को मअतल करके क्लोज लाइन कर दिया है। ट्रांसपोर्ट्स मालिकान ने मौसर कार्रवाई पर DSP को खराज तहसीन पेश करते हुए आला हुकाम से मुलजिम को सख्त सजा दिलाने का मुतालिबा किया है। फिरोजवाला की इमामिया कॉलोनी में 2 ग्रुपों के दरमियान मामूली तलखलामी सुलह के दौरान फायरिंग में तब्दील हो गई, जिसके नतीजे में एक राहगीर उस्मान मौका पर जाबहक हो गया, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। वाक़े के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौका पर पहुंच गई, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। परसों एक मुंडे टिब्बे दा फैर मारिया, दूजे मते नजायज फरोश धंधा ने दा शराब चरस फीम सारा कुछ बेचदे। ठीक है, जेड़ा बंदा टक्करदा उत्थे नजायज करदे ने हर बंदे नाल। लोकां दी दुकानां नूं भी मारी लड़ाई होई है, ना कोई गल ना कोई बात। असीं तुहाडा मुंडा वेचांगे, साडा मुंडा वेच हिलने हुंदे आ, तुसीं पुछ लेने आ ए मुंडा केड़ा मुंडा, असीं ले के जाने उत्तों छत तो फैर मारदे ने, ब्रैस मारे छत तो सीधे। एक राहगीर मुंडा मरिया, एक साडा हमसाया सी, ये 5-6 मुंडे साडे अपने फैल गए, कियों ढिੱਡ ਚ ਲੱਤ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਉੱਤਰੇ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ नहीं, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ DPO को जावांगे। मसूर के इलाके इलाहाबाद से नौजवान शाहजेब पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। अहले खाना के मुताबिक नौजवान दोपहर के वक्त घर से निकला मगर वापस ना आया। मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस ने अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी है।
फिरोजवाला के इलाके पठान कॉलोनी में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चियां शबनम और आमना जाँ बहक हो गई, जबकि एक शख्स मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1122 ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मलबा हटाकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े के बाद इलाके में सौग की फजा कायम है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल का शोबा अमराज चश्म मुस्तकिल आई स्पेशलिस्ट से महरूम है। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल का शोबा अमराज चश्म मुस्तकिल आई स्पेशलिस्ट से महरूम है, जिसकी वजह से आंखों के मरीज इलाज के लिए दर बदर हैं। आर्जी तौर पर 2 दिन के लिए माहिर अमराज चश्म की तैनाती की गई है, जिन्होंने 1 दिन ओपीडी और 1 दिन ऑपरेशन के लिए मुख्तस किया है, जबकि मरीजों की तादाद ज्यादा है। यही वजह है कि हफ्ता के बकिया 4 दिन आई डिपार्टमेंट में हू का आलम होता है और मरीजों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं अहमदपुर सियाल हेडक्वार्टर अहमदपुर सियाल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई डॉक्टर आंखों वाला नहीं है। 2 दिन के लिए आते हैं, यहाँ पर मुस्तकिल डॉक्टरों को भेजा जाए। आंखों के लिए बहुत आवाम परेशान हो रही है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। देखें भाईजान, यहाँ पर मरीज तो काफ़ी सारे आते हैं और बेचारे किराया लगा लगा कर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर अपना हमारे निवास से भी अपील है हमारे वज़ीर आज़म से, यहाँ पर कोई डॉक्टर हेडक्वार्टर अहमदपुर सियाल में भेजा जाए मुस्तकिल, तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और आते हैं बंदे और वो धक्के खाकर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई हेडक्वार्टर अहमदपुर सियाल में डॉक्टर नहीं है, 2 दिन के लिए आते हैं। आंखों के मरीजों ने अरबाबे बस्तो कुशाद से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में मुस्तकिल तौर पर आई स्पेशलिस्ट तैनात किया जाए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। मुजफ्फरगढ़ में थाना जतोई पुलिस ने नाजायज असले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है और ऐसी कार्रवाइयां भी जारी हैं। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर कसूर पुलिस ने पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं शहबाज अहमद की रिपोर्ट में। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस के SHO मोहम्मद असलम भट्टी ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। सर्च ऑपरेशन के दौरान पतंगबाजी और इसके कारोबार में मुलविस 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस का वादा मौक़िफ़ है कि कसूर में बसंत की कोई इजाज़त नहीं है और ना ही आइंदा दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम भट्टी है जी। मैं SHO बी डिवीज़न तैनात हूँ। मैं तमाम जो इलाका बी डिवीज़न के शहरी हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल ये बसंत और पतंगबाजी का एक शोर डला हुआ है, तो मैं इस हवाले से एक अहम मैसेज सब लोगों को देना चाहता हूँ कि कसूर में बसंत की कोई इजाज़त नहीं है। कोई बसंत का त्यौहार जो मनाने की कोई इस किस्म की कोई भी इंतज़ाम अगर कोई करता हुआ पाया गया या किसी ने पतंगबाजी में मुलव्वस पाया गया तो हम उसको गिरफ़्तार करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करेंगे। तो इसमें मैं तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मैं इल्तमास करता हूँ कि आप अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को और अपने लड़कों को ये बताएं कि कसूर में पतंगबाजी की कोई इजाज़त नहीं है। पतंगबाजी एक खूनी खेल है। इस बारे में सख्ती से ये हुक्म दिया जा रहा है कि कोई भी बंदा अगर पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ हम FIR देंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जैसे कि आज इतवार था, आज हमने ये कार्रवाई की है। आपके सामने ये 9 बंदे हमने पतंगबाजी करते हुए पकड़े हैं। ये अभी 1 घंटे की कार्रवाई थी और अब मज़ीद हमारी टीमें आउट हैं। जैसे ही कोई पतंगबाजी करता हुआ नज़र आया या पकड़ा गया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और मुकदमा दर्ज करेंगे। तो तमाम लोगों से इल्तमास है कि अपने अजीज़ों को और अपने आप को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए ये पतंगबाजी से सबको मना करें। पुलिस ने अमली कार्रवाइयों के साथ अवामी आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है। मसाजिद में ऐलानात के जरिए शहरियों को पतंगबाजी के नुकसानात से आगाह किया जा रहा है। कसूर पुलिस का कहना है कि ये मुहिम जारी रहेगी और शहरियों के ताउन से इस जानलेवा खूनी खेल का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, कसूर। पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने नाकिस और मुज़र सेहत गोश्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 320 किलो से ज़ायद बदबूदार गोश्त तलब कर दिया। गाड़ी जब्त करके मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि सफाई के नाकिस इंतजामात पर 2 मीट शॉप्स भी बंद और 3,52,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक आवाम को मियारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।
SSP उमरकोट की हिदायत पर मंशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान CIA पुलिस ने थाना छूर की हुदूद में कार्रवाई करते हुए गुलाम सरवर समूह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम मुकदमे में नामजद है। पुलिस ने बड़ी मिकदार में गुटखा, मोबाइल फ़ोन, लॉन्ग जीप और नकदी बरामद कर ली है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हैदराबाद में हेस्को फैजुल्ला डायरी की मारूफ कारोबारी शख्सियत आशिक अली बरोही के वालिद के इंतकाल पर बरोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट पहुंचकर ताज़ियत की। इस मौका पर मोहम्मद नवीद शेख और शफीक डायरी भी मौजूद थे। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी भी किया गया। टंडू मोहम्मद खान के मेन हैदराबाद रोड पर नसब ई चलान कैमरे में अचानक आग लग गई, जिससे कैमरा शदीद मुतासिर हुआ। वाक़े के दौरान शहरी वीडियोस बनाते रहे, जबकि इंतज़ामिया ताख़ीर से मौका पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी और कैमरा जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। नंदरी तल्लुका में गंदम के बहरान के बायस आटे की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। आटा चक्कियों के कोटे में कमी, ओपन मार्केट में गंदम की महंगी फ़रोख्त से सूरत हाल संगीन हो गई है। ज़राए के मुताबिक हज़ारों बैग गंदम और दीगर इज़ला मुंतकिल किए गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। आला में जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध में सनत, तालीम, सेहत और रोज़गार की बदहाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रहनुमाओं का कहना है कि इंडस्ट्रियल जोन्स की बंदिश, मंशियात के फैलाव और तालीमी बहरान ने नौजवानों को तबाही की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने रोज़गार, सनत और शफाफ इंतखाबी निज़ाम के क़याम का मुतालिबा किया है। जाम शोरों में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं इशफाक के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरो शहीद जुल्फकार भुट्टो फ्लाईओवर पर, जहाँ पे आज कोटरी की आवाम की जानिब से एहतजाज किया गया है। केबी फीडर में पानी ना होने की वजह से आज कोटरी की आवाम, खुदा की बस्ती, बरोई चौक, सिकंदराबाद की आवाम ने कोटरी शहीद जुल्फकार भुट्टो फ्लाईओवर को ब्लॉक कर दिया है। आइए इन मकीनों से पूछते हैं ये एहतजाज कब तक रहेगा। जी भाई, आज आपने कोटरी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो फ्लाईओवर को ब्लॉक कर दिया है, किस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, हमारे को ये पुल ब्लॉक करने का कोई शौक नहीं है, मजबूर बेबस होके आज हम यहाँ बैठे, मगर यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया, यहाँ का MPA, यहाँ का MLA इन बातों से, इस बात से वो जो कानून में कपास डाल के बैठे हुए, यहाँ म्यूनसिपल बोर्ड की आवाम प्यासी मर रही है, यहाँ पानी के कतरे में तरस रहे, मगर इंतजामिया नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। आज का धरना का मुतालबा ये है कि हमें पीने के लिए पानी दिया जाए। तो बताइए कि कोटरी की कितनी आवाम परेशान है पानी के लिए। जी, इस वक्त बिलखुसूस जो पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार की है वो कोटरी साइड म्यूनसिपल कमेटी बोलड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो पहले ही पानी की किल्लत होती है, हमारे जो ज़िले इंतजामिया या मुंतखब नुमाइंदान हमेशा खामोश तमाशाई बने होते हैं और वाटर सप्लाई स्कीम में गैर फाल है। तो नाताल के दौरान बिना किसी मुतबादिल रास्ता निकाले हुए, मुतबादिल रास्ता यानी बिलखुसूस कोटरी साइड की आवाम के लिए ये नहीं निकालते कि उनको पानी कैसे देना है। नतीजे में ये होता है कि टैंकर माफिया मनपसंद रेट पर टैंकर फरोख्त करती है और हमें वो टैंकर 6 से 4 हज़ार में खरीद करना पड़ता है। तो DC जामशोरो से हमारा मुतालबा है इस धरने के जरिए, आपकी मीडिया के जरिए नोटिस लेकर कोटली साइड की आवाम के लिए कोई मुतबादिल रास्ता निकलवाएं। टैंकर माफिया नंढो टैंकर 4,000 वॾो 8,000 रुपया आहे। गरीब मजदूर माण्हू जेको मेहनत कश माण्हू आहे जेको 1,800 दिहाड़ी कमाइण वारो टैंकर पाणी केॾो लाराए। अच्छा जी नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी। कैमरामैन अवैस बबर के साथ अशफाक अहमद बबर, स्पेशल TV जामशोरो। टंडू मोहम्मद खान में मरहूम पीर सईद जान सरहंदी की बरसी की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत करके मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौका पर बच्चों के लिए क्विज़ मुकाबला भी मुनक़िद हुआ, जबकि मरहूम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। स्पेशल TV से फिल्म इत्तिताही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।